first be with the family, solidly with the family who have lost their best next of kins. It's a very unfortunate incident. Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बारामती में प्लेन हादसा हुआ। इस हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद चार्टर प्लेन के मालिक ने बड़ा बयान दिया है। मालिक ने कहा कि हो सकता है कि पायलट रनवे नहीं देख पाया होगा। इस दौरान उन्होंने इस बात को भी जोड़ा कि पायलट अनुभवी थे। सबसे पहले हम सुनाते हैं कि आखिर चार्टर प्लेन के मालिक ने क्या कुछ बयान दिया। That is the reason, because उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था। वो पायलट का डिसीजन था। He made an approach from runway 29, and then he carried out a missed approach. After which, again, he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their best next of kins. It's a very unfortunate incident. Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken 2 loops. How is it possible that he could not see the pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience. Very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. Yeah. 1,500 hours. Okay. And the captain was very experienced, instructor examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. So but the distance was almost more than 6 kilometers from the runway. Do you think it's possible that he could not have seen it, or there could have been any technical scan? I really don't know, because I was not there. Because we are talking about the flight data report. I'm only talking of the information that I have got from the eyewitnesses. When was the last security check done on the aircraft? The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. And as far as we know. 2023 के इंसिडेंट की रेफरेंस दी जा रही है कि 2023 में भी ऐसी एक हादसा हुई थी। उसमें भी आप लोगों ने शायद लो विजिबिलिटी की बात उठाई थी। अगर आप उसमें मैम 2023 में जो हुआ था वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे हुआ था, और उसमें भी बारिश हो रही थी, लो विजिबिलिटी थी, एंड द पायलट आफ्टर टचडाउन स्किडेड ऑफ द रनवे. So that was the incident. अभी फिलहाल सर जो आप लोगों से डिटेल्स मांगी जा रही हैं उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है पूरा? मैं देखिए AIB की इन्फॉर्मेशन मैं ना आपको दे सकता हूँ ना मुझे कुछ मालूम है. The DGC is doing the work, so please give us some time to handle first the families who have lost their lives, handle the DGCA, and then we'll get back. Sir, how many Learjet 45s do you have? We have 7. And will you ground them for now? I don't know. Why should I ground them? They're all fit aircraft. Why should I ground them? Okay. That's not my decision. Okay. The Learjet worldwide is a very, very dependable aircraft. So why should we ground them? And please excuse me more than this. I've listened to you. Message for the family members who from where were my deepest condolences. So Captain Sumit Kapoor was a was very good friend of mine. Very good friend of mine. He was a brother to me. Yeah. His son is also a pilot with us. Captain Shambhavi was a daughter to me. She was a child to me. And both of them were extremely good human beings, extremely good pilots. So where Unfortunate. They're from Delhi. Delhi. They're from Delhi. It is very unfortunate this has happened. Please give us time to come out of this, irreparable shock. अग्रीड सर, सिर्फ एक लास्ट बात, एक पायलट आप लोग जो पूछ रहे हैं वो इस समय मेरे को भी नहीं पता. नहीं सर, 2023 में जो हुआ था इस समय आज 2023 की बात करने का समय है. इस बार फ्लाइट एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट था. और ये मैं नहीं कह रहा हूँ. टेक्निकली द DGCA investigates. The DGCA can only speak. I cannot speak. Certainly, sir. I'm not the investigating authority. बता दीजिए कि कितने फ्लाइट आज कितने बजे हुआ, कितने बजे एक्सपीरियंस? मैम अंदाजन 8 और 8:30 और 9:15 के बीच में हुआ है. आपके पास कॉल आया थोड़ा? मेरे पास जब कॉल आया जब कि एयरक्राफ्ट हैज क्रैश लैंडेड, तो उसके बाद देयर वाज नो वन टू हुम आई कुड कांटेक्ट.
तो सुना आपने कि चार्टर प्लेन के मालिक ने क्या कहा। हादसे के बाद दिल्ली में VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और मुख्य मालिक विजय कुमार सिंह ने कहा कि लैंडिंग का फैसला पायलट का फैसला था। उन्होंने रनवे 29 से अप्रोच किया, लेकिन उनका ये प्रयास नाकाम हो गया। इसके बाद उन्होंने एक और कोशिश की तथा रनवे 11 से फिर लैंड करने की कोशिश की। उन्होंने पायलटों को लेकर कहा, मेरा पायलटों से कोई संपर्क नहीं है, वो वहां नहीं है और उनका लैंडिंग का फैसला बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हादसे को लेकर हमें भी बहुत दुख है। हम सबसे पहले उन परिवारों के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही। पायलट के अनुभव को लेकर मालिक विजय कुमार सिंह ने कहा कि खास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि पायलट रनवे नहीं देख पाए होंगे। हालांकि वो बहुत ही अनुभवी पायलट थे, उनके पास 16,000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था, जबकि को पायलट के पास भी 1500 घंटे का अनुभव था। कैप्टन बहुत ही अनुभवी थे। वो पहले सहारा, जेटलाइट, जेट एयरवेज जैसी कंपनियों के लिए काम कर चुके थे और उन्हें इस तरह के हवाई जहाज का काफी ज्यादा अनुभव था। प्लेन के मेंटेनेंस को लेकर विजय कुमार सिंह ने कहा कि प्लेन को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया था। प्लेन में बिल्कुल कोई खराबी नहीं थी। जहां तक हमें पता है, विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। मेरे हादसे को लेकर गहरी संवेदनाएं हैं। कैप्टन सुमित कपूर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो मेरे भाई जैसे थे। उनका बेटा भी हमारे साथ पायलट है। कैप्टन शांभवी पाठक मेरी बेटी जैसी थी, वो बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे पायलट थे। तो वहीं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA की ओर से हादसे को लेकर जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, 2 और लोगों जिसमें एक PSO और एक अटेंडेंट के अलावा 2 क्रू विमान में सवार थे। इस बदकिस्मत चार्टर प्लेन में सवार अजीत पवार के अलावा विदीप जाधव, पिंकी माली, क्रू मेंबर सुमित कपूर और शांभवी पाठक की मौत हो गई है। तो इस पूरी घटना को लेकर देश भर में शोक का माहौल है और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो, इसमें दी गई जानकारी आपको ठीक लगी होगी। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।